So yeah, we are live and we will officially start once we get a few viewers. So, but I will share the link. Okay. Yeah. Assalamu alaikum, everyone. Can you please, first of all, mention in the comments if you can see us both clearly and hear me clearly? Thank you. Yeah, I've got confirmation. So, let's start. Ready, ma'am? Ready. Okay. Assalamu alaikum, everyone. This is Vidya Zainab from Creative Cleaner House, and today the guest with me. I don't think she needs. Well, no, she does need a huge introduction. She is a mother, a teacher, an educationist, and bringing with her an experience of over 3 decades. So I'm really excited for the talk today, and thank you so much for joining us, Mrs. Nuzhat Sohail. How are you, ma'am? I'm good. Alhamdulillah. How are you? I'm good, thank you so much. She is the headmistress or principal of Sebat School Systems. Haji, you can name it any designation. Okay, and you also run the Tiny Tots daycare system, right? Yes. My Okay, daughter-in-law does that, but a part of it. you okay. So, ma'am, I would like to hand over to you. Please tell us about yourself and let's start. Okay. You want to know the journey so far I've Definitely. traveled of life. First of all, Assalamu alaikum, everyone. And I hope you all are keeping yourself safe. COVID-19, as it's a worldwide issue, and by all our the way we can possibly are doing our best. And I hope and pray for the country and for the world that everybody should stay safe. And those who are ill, may Allah give them shifa. I mean, Number two, I would really like to contribute my prayers, my best wishes to Creative Kids House, and special prayers for your mentor, Sabine Bilal, because thank you. the much I know, the much I dig, I find out that the world is not left out with good people, people with, who can feel the pain, and people who are there to bring strong decisions, bring happiness, and are thankful for whatever they are doing. And this is what we've gathered here today. And let's start off with my own journey. Ekis, I would like to highlight over here that this is for general, for all of us. As at, I'm touching the age, I would like to participate uh, a little thought Mm-hmm. that everybody is in this society, in this world, is carrying their own pressures with them, right? The pressure Definitely. of worries, the pressure of insecurity, the pressure of anxiety, the pressures of family life, the pressure of wife, the pressure of husband. There's so many pressures that we carry along, and but with different flavors. My worry is different, your worry is different. And True. similarly, everybody is loaded with all these things. We cannot say that there aren't any problems, there aren't any pressures, there aren't any perfection. जिसके लिए हम सब लोग we follow that, but it's not. Reality में जाएं तो it is not. Everybody is feeling some sort of a pressure somewhere. So, True. like you should be more thankful, bring happiness to your life, stay positive, and you should be Thank you, very, ma'am. very much, yes. You should be very concerned about your decisions because that is the right thing to do. I will now introduce myself. My age is almost touching 60. Mm-hmm. So this journey,
I got married with 3 children. Mubin, we are talking about, is a hearing impaired child. Found out one morning that he's running a very high temperature. We took him to the hospital. A new vocabulary came into my knowledge that there's a disease called meningitis, and Okay. which I was not aware of. Sorry, how And old was he when you took him Mubin to? was uh, 2 years and 7 months at that time. That was the month of July, extreme hot, and didn't know what to do. So when I took him to the doctor, when I took him to the hospital, we found out that there's a neck stiffness in which is called meningitis. So Okay. the you can well imagine 30 years back when there was no technology, there was just paracetamol and one or two kind of antibiotics. Yep. So no advanced technology, just the uh, effort, I would say, the doctors, the commitment of doctors. And obviously, I had to be with him. He was unconscious for 20 days, but not realizing the after effects, post cure kya hoga. Mm-hmm. Having said all this, 20 days, this procedure, coming back home with the same uh, satisfaction that all is done. He's, mashallah, he's healthy. He's, alhamdulillah, everything is over. But within 2, 3 days, I realized that there is something is missing. And what is that missing thing? Was that a child at this age had word vocabulary of around 50 words, you can say. He was not on phrases, he was on words. So Yeah. वो कम होते गए. और सेकेंडली उसके साथ मुझे जो लगा कि कुछ चीज डिफरेंट हो गई है, which doctors at that time did not understand as well while he was Your being motherly instinct, basically. एक motherly, because when जब वो सो रहा होता था and the TV was on, तो वो म्यूजिक में या शोर में there was no movement. तो Hmm. फिर मैंने आई ट्राई टू वर्क आउट कि उस बैक पे मैं क्लैपिंग करूं या मैं कोई स्टील के उससे वो साउंड करूं, तो there was nothing. That was the time, after 5 days, I guess, that I shared it with my close family members, and I said कि I think there's something wrong. But mostly हम लोग denial पर होते हैं कि ये नहीं Yeah. हो सकता. But I went and I took him to an ENT specialist. उस जमाने में जो हमारे पास आजकल लेटेस्ट इक्विपमेंट है, it was not there. You could not decide, you could not tell. वो भी वही रेमेडीज उन्होंने भी यूज की जो मैं घर में ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी थी. एंड दे सेड कि अच्छा जी, मेनिंजाइटिस के बाद तो ये एक साइड इफेक्ट आपके पास आ गया है. अब इमेजिन करिए कि आउट ऑफ 5 सेंसेस my son is left out with one major senses, that is sense of hearing. Along with that, muteness came over. वो जो कुछ words याद थे, with the passage of time वो सब खत्म हो गए, delete होना शुरू हो गए. Yeah. वो delete इसलिए होना शुरू हो गए थे क्योंकि मैं इतनी there was no Google, there was no YouTube, there was nothing as such. There was only a landline, or there was no book written on these things, or nor I had the awareness that I can go there. The doctors were not very cooperative or not very well informed. खैर टाइम गुजरता गया, होता गया. जो मिले, जो देखे, they had their own suggestions, they had their own ways to communicate कि अच्छा अब ये कर. आपको पता ही है अभी जैसे कोविड में भी है, lot of people are giving their own Their own remedies. advice. Yeah. तो I was in a kind of state कि अब I have to do something that my son needs. A lot of suggestions came. They said कि जी अब proper schooling होनी चाहिए, he should be going to a regular normal school. आपको पता है एक word बहुत use होता है कि socialize करना. जी. But what was good for him, मैं उस पे बहुत ज़्यादा deeply I was concerned.
उस पे one fine morning I sat up and thought कि what should I do? Should I follow the regular procedure? जाहिर है इस चीज को करते कराते ही turned up इस एज में आ गया था कि he had to go to a school, लेकिन उसकी बिहेवियर में बहुत फर्क पड़ गया था, उसके डिस्ट्रैक्शन में बहुत फर्क पड़ गया था, उसके साथ साथ each passing day was a worrisome for me because I had to disengage myself from the general public, from the markets, क्योंकि वो आप अपने आप को इमेजिन करके देख लें कि एक आप टीवी में कोई चीज देख रहे हैं और उसको म्यूट कर लें तो हाउ वुड यू फील? दैट वाज द फीलिंग. मैं अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करती थी कि ही इज गोइंग थ्रू दिस स्ट्रेस और except me nobody is going to understand this. This was the main concern. There were two families, one my friend's family and my brother's family at that time. So वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसको लेके जाना, लेकिन फिर वापस आ जाना, क्योंकि जाहिर है एक जो डिस्ट्रैक्शन का एलिमेंट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था. स्लोली एंड ग्रेजुअली आई फाउंड आउट कि इस्लामाबाद में देयर इज अ स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. जब मैं वहां उसको लेके गई तो द प्रिंसिपल सेड कि नहीं, इसका तो बिहेवियर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है. आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पहले कहीं ऐसी जगह डालें जहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ तो सुने, बिकॉज ऑलरेडी रेगुलर क्लास में आप एक ऐसे बच्चे को डाल दें. दोज टाइम्स देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ सपोर्ट टीचर एज वेल, तो हो नहीं पा रहा था, उनसे भी काबू नहीं हो पा रहा था. I decided, my friend was working in one of the private schools in F6. So I'm very grateful to the principal also and to my friend also कि उसने कहा कि let's try out on a regular school. हमने क्या किया, एक उस जमाने में वीडियोस बना करती थी 3 cassettes वाली. I requested a gentleman कि आके तुम इसकी डे की वीडियो बनाओ. We made a video out of it. तो वहीं से ही पता चल गया कि नहीं, ही इज नॉट फिट फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स. वो जब टीचर लेक्चर दे रही है तो ही इज स्लीपिंग, ईदर ही इज ईटिंग लंच, व्हेन ही इज इन द प्लेग्राउंड everybody is playing but he is all around himself. For me, taking a decision कि उसको एक रेगुलर नॉर्मल चीजों से हटा के अब मुझे उसको उसकी अपनी सोसाइटी में लेके जाना है, उसको अपनी जैसे लोगों में लेके जाना was a huge decision. Why? Because there were options ना कि आप इसको रेगुलर स्कूल में भी ले जाएं. I being a teacher myself at that time and अपनी जॉब को भी आपने प्रोसेस करना है, अपनी लाइफ जो फैमिली लाइफ है उसको भी आपने देखना है. फिर ये प्रॉब्लम जिसका आपको ABC भी नहीं पता है. When we started off with this, no clue at all. I found out that there's another language by the sign language. So I decided कि no, I will send him to the school where he belongs to. Why? Because I felt कि ये रेगुलर स्कूल में 100 लफ्ज सीख जाएगा, 150 लफ्ज सीख जाएगा, लेकिन कम्यूट नहीं कर सकेगा. अपने आप को वो जो एक्सप्रेशन ऑफ हिज ब्रेन एंड हिज हार्ट, he will never be able to. So it was a hard decision though, and I decided it. राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से फिर के पड़ा कि उसको अपनी ही सोसाइटी एक्नॉलेजमेंट मिल गई. he came to realize that he's not the only one. There are a lot other like him. A lot of other people are suffering from the same problem, regardless of a class. There was no class discrimination over there. You see, I have a question. Yes. आप decisions की बात कर रही है ना कि it was very important to make the right decision at the right time. I just want to ask कि to make the decision आपके पास क्या कहना चाहिए, क्या backing थी, क्या support system था? How difficult was it to make these decisions? या किसी ने anyone or any group of people made it easier for you? The decision was all mine. Okay. You know why? Because I was not assuming Mubin at the age of 4.
I was looking forward when Mubin will turn 16 or 17. I was thinking Mubin minus mother. How will he survive if I am not in his life? So that was my subconsciously, these questions were revolving throughout. What if I'm not there with him? What if the brothers are not there with him? What if anybody's, and if he's alone? So आप अपने डिसीजन में एक्सट्रीम पर जाते हैं कि क्या मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो उसमें हाउ विल ही बी अ सक्सेसफुल पर्सन. तो उसके लिए यही डिसीजन बेहतर था कि वो अपनी लाइफ अपने लोगों की तरह एक हेल्दी लाइफ और एक एक्सप्रेसिव लाइफ गुजारे. और I'll be sharing with you that was the most successful decision I've ever made. बिकॉज अभी आप उसको देखें, अभी उसकी लाइफ को देखें, माशाल्लाह ही इज हैप्पीली मैरिड, माशाल्लाह ही इज डन हिज ग्रेजुएशन, ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस एंड ही इज डूइंग वेरी वेल. ही इज सो इंडिपेंडेंट, ही इज नॉट डिपेंड. अब हम डिपेंड करते हैं उस पर. सो ये गोल जो है आपका अचीव हो जाता है एक एक्सटेंट पे, जब आप एज अ मदर डिसाइड करते हैं. वेरी डिफिकल्ट डिसीजन बिकॉज आप, मैं उसको लेके घूमती थी तो आपका कॉमन सेक्टर में टिपिकल लोगों का हाय गुंगा है, हाय बोल नहीं सकता, एंड ही कुड अंडरस्टैंड दोज एक्सप्रेशंस कि मेरे ऊपर लोग सिंपैथेटिक हो रहे हैं. And that was a very painful thing for me as a mother to tell him कि ये चीजें लोग कह रहे हैं. And ऐसे लोगों की अगर एक सेंस खत्म होती है तो सिक्स सेंस इज वेरी एक्टिव देन, and you can't play with them, you see. Or my aim was not that he should study. मेरा एम और ऑब्जेक्टिव्स उसके लिए कोई एजुकेशन वाइज इतने हाई नहीं थे और ना ही मैंने रखे हुए थे. I wanted him to become a good human being, a good citizen, a person with this disability can contribute into the society, healthy, जो आप जितना healthy आप society को दे सकते हैं वो दें. And it actually happened. Now when I stand here, if I'm talking about Mubin, he's one of those persons जो ना सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने उस पूरी बेल्ट के लिए, उस पूरे सोशल सेक्टर के लिए सोचता है for their well-being. He wants to support each person who is suffering from something. उसकी sensitivity as a human being is so sensitive that वो एक चूंटी को भी नहीं मार सकता. He doesn't want to do that. हमारे घर में एक lizard आ जाए, he is the only one जो उसको प्यार से रास्ता दिखा के बाहर निकाल देता है, मारने की कोशिश नहीं करता. So आप देख लें कि ह्यूमैनिटी उसके अंदर फिर किस तरह अचीव हुई है, किस तरह बिल्ट इन हो गई है. So I'm thankful and grateful to Allah for giving me the opportunity for building his character and bringing him to the society as a good citizen, because that is what is required more, I think, rather than being a PhD student and good for nothing. तो वो जो है वो चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा बच्चे सक्सेसफुल रही in the case of Mubin. I would like to share and tell the mothers that nobody is perfect. Nobody is here who does not have pressures. Nobody is here who does not have problems. Yeah. Everybody in this society we all carry these. मैंने बहुत डील किया है मदर्स के साथ, और हर मदर जो है वो इसका बहुत प्रेशर लेती है. हर पेरेंट जो है वो इसको प्रॉब्लम समझना शुरू हो जाते हैं. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ चैलेंज गिवन टू यू. थैंकफुल होना शुरू करें. सेल्फ पिटी में जाना, अपने आप को कर्स कर देना, अपने लिए ये समझ लेना कि वाई मी. हम जितना थैंकफुल होंगे अल्लाह के लिए, बिकॉज हमें अल्लाह ने शायद इसकी जगह एक ऐसी चीज दे देता जो अगली सोसाइटी के लिए बहुत पेनफुल हो जाती. ये होती हैं केसेस, ऐसे होते हैं, हम उसको रेज अच्छी तरह ना कर सकते.
ये एक टेस्ट एंड ट्रायल पीरियड होता है जो हम दुनिया में आते हैं। मेरी हर मदद से जो स्पेशली इस एरिया में हैं, जिनके कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज हैं, दे शुड बी वेरी होपफुल. They should not give a space of sadness coming into them. Try to keep yourselves happy. उन्होंने खुशी अपने अंदर से निकाल दी हुई है, सैडनेस ले आई हुई है, बहुत डिप्रेशन आ गई हुई है, कंप्लेनिंग है टुवर्ड्स अल्लाह, सेल्फ पिटी में बहुत ज्यादा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा ये एक टाइम है जिसमें हम सब के लिए एक चैलेंज है. और वो मदर्स आर ब्लेस्ड मदर्स. दे हैव समथिंग टू डू. दे डीलिंग विद समथिंग विच अल्लाह हैज. एक इंसान पैदा हो गया है, अगर उसके जिक्सॉ पजल में कुछ पीसेस आर मिसिंग, तो हमने उनको सॉर्ट आउट करके उनको फिक्स करना है, टू लिव अ वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ इन टाइम्स टू कम. ये चीज़ें हमारे लिए टेम्परेरी बहुत पेनफुल होती हैं. वो इसलिए होती हैं कि हमें सोसाइटी इसको ज़्यादा पेनफुल बना देती है. हमारे जेस्चर्स, हमारे कहे हुए वर्ड्स, हमारे एक्सप्रेशंस, दे ऑल अफेक्ट द मदर. Definitely. So, as a society, whoever is listening, please make sure कि उस माँ को you need to give a pleasant hand, a happy hand, a thankful hand, बजाय इसके कि वो further, क्योंकि आप बोले ना बोले, आपका जो facial expression है, it says body language. बिल्कुल. और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, स्पेशली ऑन मदर्स हीलिंग प्रोग्राम्स. दे आर ट्रिमेंडस. जब एक दूसरे से हम शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इन लॉज की प्रॉब्लम्स हैं, हस्बैंड की प्रॉब्लम है, वाइफ की प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और फ्यूचर बेस्ड प्रॉब्लम है कि इफ देयर इज अ डॉटर, वो क्या करेगी. वो तो अम्मा निकल ही नहीं पाती उस चीज से. बट टेक इट एज अ चैलेंज. जहाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, कोविड को फेस कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छी तरह से थैंकफुली उसको एक्सेप्ट करें और वर्क विद द चाइल्ड. डू नॉट लीव योर सोसाइटी. आपने जो काम करना है आप करें, लेकिन एक मीन्स में रहते हुए करें. आफ्टर ऑल, अ मदर हैज टू टेक केयर. बाप का वहाँ होना, सपोर्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगेन हैविंग सेड, मैंने अपना स्टार्टर ही इसलिए इसी तरह लिया था कि आप कोऑपरेटिव सेंटर में चले जाएं, आप किसी एरिया में चले जाएं, एवरीबडी हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स. प्रेशर्स भी हैं लाइफ में. सोसाइटी हमारी बहुत ज़्यादा इस वक्त एक कंफ्यूजन में भी है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि मदर्स को थोड़ा खुश होना सीखना चाहिए, थोड़ा अपने आप को उसके टाइम लिए आप क्या देना. रेकमेंड करेंगे वैसे आप मैम? तैयार मतलब जैसे वाई मी, जैसे क्या था ना कि आप कहती कि वाई मी में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज एंटर्ड दैट फेज एंड इज लॉस्ट बेसिकली, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि किस तरह से उससे बाहर आया जाए? She should not get lost. She should take it as a challenge. She should take it, again, having said, she's not the only one. There is some problem somewhere in every home, in every house, in every human being. किसी को इस तरह से मिल गया है, किसी को दूसरी तरह से मिल गया है. सो शी शुड प्रेज हर सेल्फ फर्स्ट. अपने आप को समझे कि वो एसेट है. मैं यहाँ पे एक चीज इंडोर्स करना चाहती हूँ और नोट करना चाहती हूँ. कल आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ द लाइव शोज, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दैट, कि देयर वाज अ क्वेश्चन रेज्ड इन दैट ग्रुप कि जी हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं व्हेन चाइल्ड कम्स टू अस. Again, it was on hearing impaired children. So I was a little concerned कि the question publicly ये नहीं होना चाहिए था कि जी is this जो शादी है आपकी, क्या वो joint family system में है? Number one. Number two, is it a cousin marriage? ये दो questions जो है ना, ये आपकी healthy family को ruin कर देते हैं. क्योंकि मेरे हिसाब से
अगर आप हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, देन दीज थिंग्स दे डोंट मैटर। आप Yeah. एक बनी बनाई शादी को बीच में क्रैक्स आ जाते हैं व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन, इज दिस अ कजन मैरिज? अब तो हो गई ना, Yeah. की वजह से एक प्रॉब्लम भी हो गई, लेकिन व्हाट हैपेंस जब वो उठ के यहाँ से जाते हैं, तो फिर ये एक एक और हम उसके अंदर एक मिजरी डाल देते हैं कि ओ हो, काश मैं इससे शादी ना करता। हमेशा ये करता ही सवाल उठाता है, करती नहीं उठाती कि अगर हमारी शादी आपस में ना हुई भी होती तो शायद ये Yeah. ना होता, क्योंकि आपको एक क्वालिफाइड पर्सन ने ये सवाल पूछ लिया है। तो वहां पे आके आप एक और प्रॉब्लम डाल रहे हैं, दैट इज अ फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और द in-laws and the daughter who's got married into a family. तो try not to ask this question publicly. मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे कह लूं कि मुझे बहुत हर्ट हुआ था कि ये ना हो कि बनी बनाई शादी, अगर हस्बैंड थोड़ा सा कोऑपरेट भी कर रहा है तो उसमें वो पीछे हट जाए कि जी ये तो कजन मैरिज की वजह से हो गया है। होता है, ये Yeah. होगा, हो सकता है साइंस में हो, लेकिन इसको पब्लिकली डिस्करेज करना चाहिए। आई पर्सनली फील दैट वे। Secondly, coming back to few incidents that when as a teacher now or as a mentor, बहुत सारी ऐसी मदर्स मेरे साथ आई जो बहुत ही प्रेशर्स में थी बेटा, बहुत ज्यादा प्रेशर्स में। आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस बाय अपॉर्चुनिटी आप लोगों से कि मेरे पास एक बच्ची Definitely. आई 17 years old, and the mother brought her to me by गिविंग मी इंटायर फीडबैक कि आपने इसका ऐसे ख्याल रखना है, इस तरह करना है, ये करना है। फर्स्ट टाइम वो आपका सुन के मैं उसको लेके आई हूँ। 5 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, जब वो मदर कंफर्टेबल हो गई तो एक दिन वो अपनी बेटी को छोड़ के एंड देन शी केम बैक एट 4 o'clock टू मी। तो शी टुक टाइम बाय द वे एंड शी आस्क्ड मी कि आप अवेलेबल होंगी, आई नीड टू टॉक टू यू। आई सेड ओके फाइन। अब जब वो आई तो रोना शुरू हो गई बहुत ज्यादा। वो कि मैं सारा दिन आपसे जब सुबह के टाइम छोड़ने भी आती हूँ, लेने भी आती हूँ, बट यू आर ऑलवेज सराउंडेड विद योर टीचर्स और विद पेरेंट्स, तो मुझे 1-to-1 टाइम चाहिए था और मैं अपनी बेटी के सामने ये भी नहीं शो करना चाहती थी कि मैं आपसे टाइम ले रही हूँ। एंड यू नो व्हाट शी शेयर्ड विद मी कि मैं सारा दिन नमाज पढ़ के एक ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरी बेटी मेरे सामने इस दुनिया से रुखसत हो। कैन यू इमेजिन द फियर शी वॉज गोइंग थ्रू? एक माँ अपनी 17-year डॉटर के लिए ये दुआ मांग रही हो कि मेरी बेटी मेरे सामने रुखसत होए इससे पहले कि मैं हूँ। She had a fear of Mamu, she had a fear of Chachu, she had a fear of father even. So many fears she was going through. So believe me, I had no answer at that time. I just kept quiet. मैंने उनका हाथ पकड़ा, थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल किया, and then it was over. I went home and then kept thinking, what is it? What is it that is making her think like that? 4 दिन के बाद I called her up and I told her कि let's go on a tea. बड़ी मुश्किल से वो राजी हुई एंड उस जमाने में सेंटोरस वगैरह नहीं था, सो वी फाउंड अ लिटिल प्लेस वेयर वी कुड सिट एंड टॉक। तो चाय पीते पीते entire discussion was changed into her own life. She started discussing her own college life. She started discussing her own marriage life. कैसे शादी हुई, कैसे। तो आई फाउंड आउट कि उसके साथ अब ये वाली बातें करने वाले लोग ही नहीं रह गए। उसका एक ही टॉपिक और एक ही फेयर है, एंड दैट इज अ डॉटर। देयर इज नथिंग एल्स इन अ लाइफ। तो जब उसको मैंने उस एरिया से निकाला और एक नई जगह पे ले गई और एक ट्रस्ट बिल्ट अप हुआ, तो उसको फिर रियलाइजेशन हुई कि नहीं, उसकी भी एक लाइफ है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और and from that day onwards she would come प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ, फुल मेकअप, हेयर डू करके, बिकॉज मैंने उसको कहा यू हैव टू चेंज योर सेल्फ,
खुदा के वास्ते इन चीजों से निकलो. दिस यू कैन नॉट चेंज दिस, बट यू Yeah. मस्ट लर्न हाउ टू लिव विद दिस. और फिर उसके अंदर एक जो पर्सनालिटी उनकी थी, जो उन्होंने खत्म कर दी हुई थी एज अ एंड अ वेरी लर्नड पर्सन. शी वाज, ऐसा भी नहीं था कि वो, शी हैड डन एमबीए फ्रॉम कराची बाय द वे. तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया हुआ था. फिर अब माशाल्लाह बच्ची स्विंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली हुई हैं. शी इज डूइंग स्टिचिंग. वो मुझे भेजती रहती है व्हाट्सएप पे कि ये अचीवमेंट उसकी है, ये अचीवमेंट है. बिकॉज इट्स नॉट Mashallah. जस्ट पढ़ाई पढ़ाई ऑल द टाइम, द स्किल्स नीड टू Independent. बी. तो वो बहुत मेरी एक अचीवमेंट थी. अनदर जो मैं आई वुड लाइक टू शेयर, कि ये हमारी मदर्स जो हैं, ये इस चीज में गिल्ट में जो चली जाती है, दे शुड नॉट गो इनटू इट. एक सेशन था हमारा जब एडमिशंस होते हैं, तो there was the parents sitting outside and constantly sitting. उनसे पहले भी और बाद में भी जो लोग आए वो भी होके चले गए. They would not enter into the office. I had to go and ask them कि क्या बात है, आप लोग क्यों? तो the mother had tears in her eyes and she said, "Ma'am Nazi, हमें उस वक्त आना है जब when there is nobody." तो मैं वहीं बैठ गई उनके साथ. I did not take them to the office even. And I said, "Now talk about it." आंसू पे आंसू निकलते जाएं. And बात ये हो रही है कि जी my son is now 7+ और डिले स्पीच है. मेरा रिएक्शन, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. तो मैंने कहा इसमें रोने की कौन सी बात है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता. तो वो जो आंसू थे और उसके बाद वो जो स्माइल थी मदर के ऊपर, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. मैं आपको बता सकती हूँ मेरे लिए वो लाइफ टाइम अचीवमेंट थी कि मैंने एक रोती हुई माँ को जो है वो एक टीयर्स को, आई चेंज देम इनटू हैप्पीनेस. आई गिव हर द लाइफ, आई गिव हर द होप. और आज वो बच्चा हमारा अपियर होने वाला है बोर्ड एग्जाम में. और इट वाज जस्ट द हार्ड वर्क. Yeah. It was just the confidence that mother had to be given. बच्चे को कुछ नहीं था, मदर का कॉन्फिडेंस शेकी हुआ था. डिले स्पीच भी थी, जो भी था, अभी भी है. उसमें मैं ये नहीं कहती कि फ्लुएंसी भी है. आपको भी पता है कि देयर सो मेनी Issues. Definitely. लैंग्वेज में चीजें होती हैं, बट mashallah, he's a good player. He's very well into all social activities, and his copies are a model for us. हम तो उनको दिखाते हैं कि ये हार्ड वर्क है उसका. तो सैडनेस निकाल दें अपने अंदर से. Live for the happiness, live for the world. It's a very small time, bracketed time Allah has given us, and we Live should for the cherish. moment. Live for the moment and try to cherish it. Yeah. अच्छा, मैम एक जो मेरा क्वेश्चन है, earlier when you were telling about your son, ठीक है, और उसमें ये था कि you made the decision कि वो he spends time with his own kind of people, ठीक, ये इस तरह की बात. तो अब एक एस्पेक्ट ये भी है कि हमने we have to make sure कि all our kids are integrated in the society, because again this is where they have to live. So how, मैं I think what I'm trying to ask is कि वो balance किस तरह से maintain होता है, क्योंकि you are with your own people, you feel कि okay ठीक है, you're not alone, but at the same time you are integrated into the mainstream society. So where is the balance and how do you find it? Balance is the confidence. Balance is the confidence. Balance is saying, yes, I know I can do it. ये वाला जो है ना चीज, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. आप ग्रेजुअली आप करते हैं ना, रेगुलर तो आप एकदम सोसाइटी में आ जाते हैं, आप एकदम हर चीज. लेकिन इन केसेस में आपको बहुत केयरफुली स्टेप इन करना पड़ता है. आपको भी पता है कि हम जो भी करते हैं वो माइलस्टोन्स के साथ करते हैं. एक टारगेट अचीव किया, अब ये वाला टारगेट है. First target was putting him into a deaf school. Second target was learning the sign language. Right?
क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उस जमाने में बोलते हाथ एक प्रोग्राम आता था टीवी पे। अच्छा। तो अभी भी आप बहुत सारे चैनल्स जो इंटरनेशनल हैं, अब आप देख लें कि साइन लैंग्वेज बहुत पॉपुलर होती जा रही है। जी। तो टेकिंग साइन लैंग्वेज एज अ चैलेंज, नॉट एज एन कि फटीक आ गई या ये गलत चीज आ गई, इसको बड़ा हेल्दी हमने लिया। हमने इस तरह भी हेल्प किया कि हमने जो चीज छुपा के करनी होती है अब हम साइन लैंग्वेज में कर लेते हैं। वी डोंट नीड वर्ड्स। तो इसी तरह लेना चाहिए, हर चीज को पॉजिटिव एंगल से लेना चाहिए। और थर्ड चैलेंज वाज कि अब गुड सिटीजन कैसे बनना है, अब क्या करना है, अब हमने इसको इंट्रोड्यूस क्या कराना है, कि क्योंकि देयर वाज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन हिज माइंड। इंसान मरता है तो वो कहाँ चला जाता है, ये उसके लिए बहुत एक थी। तो पहला कम्युनिकेशन गैप हमारा खत्म हुआ व्हेन वी केम ऑन सेम पेज ऑन अ साइन लैंग्वेज। फिर पूरी फैमिली हमारी साइन लैंग्वेज में, कुछ नियर एंड डियर फ्रेंड्स also picked up the sign language. फिर they were smart enough to make others learn the sign language. ये भी एक इनमें कमाल बहुत ज्यादा था। उसके बाद अब सोसाइटी में मूव करना है, अब सोसाइटी का रोल आ गया इसके बाद। अब सोसाइटी में जाके बताना, तो उसमें फिर मार्केटिंग एस्पेक्ट बहुत आ जाता है। शॉपिंग में आप कैसे जा रहे हैं, आप बाय एंड सेल प्रोडक्ट पे कैसे जा रहे हैं, व्हाट इज गुड फॉर यू, किस एरिया में आप जा रहे हैं, आपको ज्योग्राफी पूरी समझानी पड़ती है कि दिस इज द मार्केट ऑन योर राइट, दिस इज मॉस्क एट योर लेफ्ट। ये सारा इंट्रोडक्शन अपने एरिया के साथ आपने उसको करवाना है। दैट एक्सरसाइज आई डिड डेली। आई वुड टेक हिम on a public transport from Satellite Town to Faisal Mosque, from Faisal Mosque to Japanese Park, from Japanese Park to zoo. So ताकि उसकी वो जो एनर्जी है वो बर्न होनी चाहिए, बिकॉज उसको बहुत जरूरी था इन चीजों से इंट्रोड्यूस कराना। सो लकीली उस जमाने में नई नई ये बिल्ट हुई थी एंड दे वर वेरी क्लीन। तो ये चीजें फिर सोसाइटी में उसको ऑटोमेटिकली, वहाँ पब्लिक प्लेस भी थी, पब्लिक से उसको ये चीजें क्यू में लगना, ये सारी चीजें उसको वहीं से बिल्ट अप होती रही। एटिकेट्स इन मॉस्क्स उसके अंदर डेवलप किए बाय सेंडिंग हिम टू जुमा प्रेयर्स, स्पेशली गोइंग टू फैसल मॉस्क ऑल द वे, बिकॉज ऑब्वियसली दूसरी मॉस्क में मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो आई वुड टेक हिम देयर और वहाँ पे जुमा प्रेयर्स इनकी होनी, और उसके बाद फिर प्ले एरिया में, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैंने बहुत हद तक विद माय सोशल सेक्टर डिस्कनेक्शन रखा हुआ था, क्योंकि एक अंदर से एक पेन तो थी ना कि क्या कर लेगा। जिसको नहीं पता कि इज हियरिंग इम्पेयर्ड वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि आपका बच्चे में कोई इशू है तो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ इसने तो करना ही है। तो वो चीजें मैंने अवॉइड की, लिमिटेड जगहों पे मैं इसको लेके गई। एक मेरी फ्रेंड का घर था, एक मेरे भाई का घर था, और इसी तरह एक दो और जहाँ पे मैं कंफर्टेबली ले जा सकती थी। कोई शादी, कोई इवेंट, कोई बर्थडे पार्टी, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय रेगुलर उसमें। इवन बड़ी मुश्किल से मैं कोई स्कूल के इवनिंग के इवेंट्स भी ज्वाइन कर पाती थी। ऑल्दो मैंने कभी छुट्टी नहीं की, मैं कभी लेट नहीं हुई, कभी अपनी जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है उसमें कोशिश की है कि टू लिव लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। लेकिन जहाँ मुबीन का काम आ जाता था वहां पे मुझे मार्जिन पे करना पड़ता था, ये डिस्टेंस करने पड़ते थे। वेल बिफोर टाइम आई वुड शेयर कि आई हैव अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, और मुझे नहीं पता कि कल को वो कहीं गुम जाए, वो वापस ना आ सके, उसको रास्ता ना याद हो, तो व्हाट विल आई डू, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते जब आप पीछे वरी एक पूरी नहीं होती। तो ये इस तरह से हमने इसको सोशली इंटैक्ट किया। देन ही मेड गुड फ्रेंड्स, और बड़ा ही उसका अच्छा अपना ही सर्कल हो गया। एंड बाय द एज ऑफ 13-14 वो बहुत इंडिपेंडेंट हो गया था, बहुत इंडिपेंडेंट। यहाँ से आप क्वेटा तक ही नोज इंटायर पाकिस्तान। He has known Pakistan more than we did. So friends everywhere in the world. This smartphone and this WhatsApp group, और ये आपका जितने भी ग्रुप्स हैं जहाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, you will find Mubin's friend everywhere.
So the confidence is there ना, that's the main Yeah. aim कि ठीक है भाई, अगर आपके साथ एक डिसेबिलिटी है बट यू आर नो लेस देन एनी अदर नॉर्मल पर्सन, True. True. ये कॉन्फिडेंस उसमें बहुत भरा हुआ है. ही इज एन एक्सीलेंट सन, ही इज एन एक्सीलेंट फादर, ही इज एन एक्सीलेंट हस्बैंड, ही इज एन Absolutely. एक्सीलेंट फ्रेंड. और बड़ा ही, आई मीन ही इज वेरी पॉपुलर. अपनी हमारे पूरी फैमिली में बहुत पॉपुलर है, अपने फ्रेंड्स में बहुत पॉपुलर है. जहाँ जाएंगे यू विल फाइंड मुबीन always taking positive and very constructive remarks, and everybody plays a role कि मुबीन को हम सपोर्ट करें. तो आज जो भी उसकी सक्सेस है उसके पीछे यही 3-4 चीजें हैं. माय डिसीजन, माय राइट डिसीजन, ब्रिंगिंग कॉन्फिडेंस, और जो लैंग्वेज उसने सीखनी है, हम लोगों ने भी सीखनी है, मिल के सीखनी है. और फिर उसको जब मूव करना है सोसाइटी में, तो उसको सोसाइटी के रूल्स, लॉज अपने जो हमारे हैं उससे फेमिलियर कराना है. और अल्लाह का शुक्र है, आई एम ब्लेस्ड to have Mubin in my life. It was a challenge, and I think that challenge has been very successful. With lots of prayers, I think that he has gathered. That उसके रिजल्ट में ये हुआ कि मैं अब जो मेरे पास ऐसा कोई केस आ जाता है या कोई ऐसे बच्चे आ जाते हैं, तो मैं बड़ा इजीली उनको जो है एक सैड मोड से एक हैप्पी मोड, एक होपफुल मोड में ले आती है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. यू हैव टू लिव विद इट, बट यू मस्ट नो हाउ टू लिव विद इट. There's another aspect I want to touch. Earlier this week, I think this week or last week, we had a session जिसमें हम siblings की बात करते थे, siblings of differently abled children, and you said you had 3 children, right? Yes. Okay. And Mubin, he's your eldest. No, he's in the middle child. Okay. Okay. So you had one before him and one after him. So what is the sibling relation like, and what was the adjustment like? What was your other child's reaction to the fact that his or her brother is different? थोड़ा सा मुझे उस एस्पेक्ट में बता दें. मैं बताती हूँ आपको. उसमें ये है कि जो उसका बड़ा भाई है और जो उसकी छोटी बहन है, ओके, राइट, वो सब जो है ना सिर्फ सिबलिंग्स के भी आगे से जो फ्रेंड्स है ना, उन्होंने सब ने उसको जो है वो इस तरह से लिया हुआ था दैट दिस इज देयर प्राइम ड्यूटी. Respect him, to support him, to help him. अभी भी आप उसकी बहन, she would उन सबको साइन लैंग्वेज मेरे से बेहतर अब आ गई है. मैं तो अब बहुत पीछे चली गई हूँ. भाई ने उसको हर उस एज पे हेल्प की बिकॉज ही हैड फ्रेंड्स, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर. तो एक जो फेयर था कि कहीं ये गुम ना जाए, कहीं ये भूल ना जाए, तो वो फ्रेंड्स, भाई के फ्रेंड्स, एवरीबडी, मुबीन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चाइल्ड इन द सेक्टर कि जी ये उसका भाई है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स तो उसके स्कूल फ्रेंड्स ही थे. आहिस्ता आहिस्ता जब वो स्पोर्ट्स में आया, वन एलिमेंट आई फॉरगॉट टू शेयर कि स्पोर्ट्स में मैंने बहुत डाला, क्रिकेट में बहुत ये गया, आपकी टीम्स बनती हैं, आपके ग्रुप्स बनते हैं, आपकी इंटरेक्शन होती है, आहिस्ता आहिस्ता आप दुनिया को एक्सप्लोर करते जाते हैं, आप खुद ब खुद सोशल होते चले जाते हैं. और उसमें फिर दोनों भाई और बहन का बहुत प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रोल रहा है उसको बूस्ट करने में, उसको सपोर्ट करने में, उसके साथ क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज होती थी कि जब खबरनामा कोई चल रहा है या कोई ड्रामा चल रहा है, साइन लैंग्वेज में हम उसको यूं करके थोड़ा सा समझा देते थे, बट ही वुड से कि ये तो आधे घंटे से बोल रहे हैं और आप इतनी सी, क्योंकि वी कुड नॉट हेल्प हिम आउट शेयरिंग दिस कि भी ये वो रिपीटेडली डिफरेंट वेज से चीजें हो रही हैं.
Yeah. तो यहाँ पे लेकिन इनके पास बहुत पेशेंस है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोथ सिबलिंग्स दे कैरी अ लॉट ऑफ पेशेंस. नाउ एडेड अप विद माय ओन बड़े बेटे की जो वाइफ है, उसने बहुत जल्दी साइन लैंग्वेज पिक कर ली. मुबीन्स ओन डॉटर, शी इज वेरी गुड एट साइन लैंग्वेज. Mashallah. मेरी जो बड़े बेटे की बेटियां दोनों हैं, they are very good at sign language. So there are two languages in our home that are working together. एक तो ये हमारी जिसके वर्ड्स हैं, और एक वो है जो साइन लैंग्वेज है. तो घर हमारा इसी तरह ही है, विद टू लैंग्वेज, बाय लैंग्वेज के साथ हम चल रहे हैं. लेकिन that is so amazing, mashallah. It just makes me so happy to hear all this, because like he is successful, mashallah, say happily married. He has a daughter, and it just makes your heart happy, you know. And it like I'm sure जो हमारे viewers भी हैं, and it is giving them a lot of motivation to just continue working hard. Especially to the viewers जिनके parents, जिनके बच्चे जो हैं वो hearing impaired हैं. They can do wonders. They can do wonders. They have the skill, born skills अल्लाह मियाँ उनमें डाल देता है. So please make sure कि उनको right direction में आप रखिए. उनको society में पहले discipline करें. Difference between right and wrong बताएं कि ये चीज़ acceptable है, ये चीज़ नहीं acceptable. A good human being की qualities क्या हैं? ये पहले अच्छा इंसान बनाना है हमने. सबसे पहले जो प्राइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, योर प्राइम ड्यूटी इज टू मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग. उसके बाद सारी चीजें खुद ब खुद डेवलप हो जाती हैं. इफ एवरीबडी इज हैप्पी विद यू, दे आर ओनली हैप्पी बिकॉज यू हैव गुड क्वालिटीज. You live with your qualities, you die with good qualities. That is the aim one carries in our lives. अल्लाह ने चैलेंज दिया है, मगर मैंने बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट भी किया है. और जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं विद ऑल हैप्पीनेस, विद ऑल थैंकफुलनेस, तो यू गेट योर वेज आउट. This is, I personally feel, and what I have experienced in my life, that you get your ways out. ऐसा नहीं होता है. There's some blockage, something that is, hurdles are not there unless and until you yourself is not prepared. So all mothers, you all need to be prepared. Nothing is impossible. Only thing that is possible is just stay happy, because problems, pressures, perfection, ये नहीं चाहिए. ये नहीं चाहिए. Thankfulness चाहिए, happiness चाहिए, decision strong बनाएं, because that is going to give you a successful life and a peaceful life. That is, I feel कि stay happy. खुश रहो. Exactly, and like as earlier mentioned, कि focus on yourself as well. मतलब अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही फार कर देंगे तो you won't. नहीं, आप happy, that's the happiness ना. Yeah. वो छोड़ देती है ना सबसे पहले. हैप्पीनेस, मैम हैप्पीनेस की भी तो अक्सर हमारे यहाँ डेफिनेशन, स्पेशली फॉर मदर्स, अनफॉर्चुनेटली ये समझा जाता है कि देयर हैप्पीनेस इज इक्वल, लाइक द चाइल्ड्स हैप्पीनेस इज इक्वल टू देयर हैप्पीनेस, right? And if a mother is even trying to focus on herself, unfortunately she is blamed. She said that she's not a very good mother because ये तो अपने ऊपर focus कर रही है. She should instead be focusing on the child. So yeah, I don't know why this perception is not changing. Like, रिदा, मैं आपसे बेटा एक चीज शेयर करूं कि ये चीज तब डेवलप होती है जब कहीं ना कहीं उसके कानों में ये चीज आ जाती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है. तो हमें बड़ा एज अ सोसाइटी बड़ा केयरफुल होके चलना पड़ता है. हमें उसको एक चीज यकीन दिलानी पड़ती है कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, दिस इज फ्रॉम अल्लाह. और वो अपना आप तभी छोड़ती है जब उसको ये चीजें सुननी पड़ती हैं और ये सुनाई जाती हैं. ऐसा भी नहीं है कि सुनाई जाती हैं. तो जब हम अगर वो सुन भी रही है ना ये चीजें, तो देन शी हैज टू मेक हरसेल्फ मोर स्ट्रांग. आपको मैंने कहा ना, मैंने सोलो डिसीजन था, तो शी शुड बी टेकिंग अ सोलो डिसीजन कि हो गया है, लोग कहते रहेंगे. लोग तो नॉर्मल बच्चों को भी बहुत कुछ कह देते हैं.
True. आप छोड़ दें इन चीजों को, आपने अपना और अपने बच्चे के लिए अपना ख्याल रखिए। Hmm. यू नीड टू, आप और प्रेशर कर देती हैं उस बच्चे को कि आप और मिजरी में चली जाती हैं जब आप रिएक्ट करती हैं। आप True. जितना हेल्दी, जितना स्ट्रांग आप खुद रहेंगी एज अ मदर, आपका बच्चा भी उतना स्ट्रांग रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बट अगेन मदर हैज टू प्ले, मैं फादर्स को भी कहती हूँ, उनका बहुत रोल है इसमें, लेकिन वो इतना ही रोल प्ले कर दें कि उसको खुश रखें माँ को, वही बड़ा है हमारे लिए। Yeah. So थोड़ा सा मैं अब एंड में मूव करना चाहूंगी थोड़ा सा प्रोफेशनल एरिया में. You've already told कि how you've dealt with a lot of mothers and किस तरह से sometimes all they need is a bit of support. I want to know कि जो आपके स्कूल सिस्टम जैसे बहुत स्कूल सिस्टम्स उसमें किस तरह से what have क्या पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड हैं, किस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को, फिर से अगर उस एस्पेक्ट पे बता दें. बेटा एक तो देखना पड़ता है कि कौन सा एरिया है, बिकॉज अब तो जो मैं देख रही हूँ, देयर सो मेनी एरियाज, डिले Yeah. स्पीच आ गई आपके पास, ऑटिज्म आ गया आपके पास स्लो जो है लर्निंग में स्लो आ गया, आपके पास डिस्लेक्सिक आ गए, डिस्ग्राफिया उसके साथ अटैच आ जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है. फिर उसका रेशो भी आपको पता होगा, मैक्सिमम 2 to 3 स्टूडेंट्स फॉर अ टीचर, एंड दैट इज अ सपोर्ट टीचर, अ क्वालिफाइड सपोर्ट टीचर विद लॉट्स ऑफ पेशेंस. एंड आप, लेकिन एक चीज समझानी पड़ती है पेरेंट्स को कि खुदा के वास्ते ये किताबें और ये ABC या 1 2 3 ये भी आप छोड़ दें, उसको हम रेगुलर एक नॉर्मल डिसिप्लिन एरिया में ले आए. क्योंकि पहला सवाल यही होता है, जी पढ़ना क्या है, किताबें कौन सी लानी. पहला सवाल किताब बता दें. नहीं, किताब से काम नहीं चलेगा. किताब से काम तब चलेगा जब आपके बच्चे को बैठना, उठना, सुनना, बोलना ये सब आ जाएगा. और उसके लिए फिर हमें अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द लेवल काम करना पड़ता है. बट आई मेक श्योर कि मैं जितना भी मेरे पास अभी तक पेरेंट आया है, जो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं कि उनको ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, उनको दूसरे बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, उनको तो मैं गैदर कर लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट गो इनटू फाइनेंशियल डिटेल्स. मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि एक बच्चा जो बहुत नीडी है और जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड, सो उनको फिर मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम दे दूँ और उसको कुछ ना कुछ अचीव कर लूँ. बाकी ब्रिज एक बना लेते हैं हम लोग कि ये बच्चा जो है, बिकॉज मेरा पहले दिन से एक एम होता है कि व्हाट आफ्टर सेबर और व्हाट आफ्टर टाइनी टॉट्स. तो मैं तो सबीन का रिकमेंडेशन मेरी हाईली रिकमेंडेड होता है कि जी आप यहाँ नहीं तो वहाँ लेके जाए, बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मेरी. एक साइलेंट भी कह सकते हैं और म्यूचुअल भी कह सकते हैं कि मैं उसी जगह रेफर करूंगी जहां मैं खुद 100% कॉन्फिडेंट होंगी. तो एक तो मेरी रिकमेंडेशन होती है दैट दे शुड गो टू अ प्रॉपर स्कूल मेड फॉर सच पर्पस, और देन अ चाइल्ड कैन कम एंड जॉइन अस. लेकिन वो अभी इस चीज पे मैं बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रही हूँ, क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत है. डिस्टेंस ना होता, करीब होते तो nothing like it, you know. For different therapies she could go to Creative Kids, and then for the academics they could come to us. वो अभी काम रहता है मेरा, क्योंकि एकेडमिक्स में तो वी आर डूइंग, क्रिएटिविटी में वी आर डूइंग, बट डिफरेंट थेरेपीज जो आप लोग देते हैं वहां पे मैं लैक करती हूँ, बिकॉज वहां पे लैक नहीं करती, इनफैक्ट मुझे क्वालिफाइड लोग मिलना बहुत मुश्किल है जो आपका स्पीच थेरेपी करा सकें, जो आपका बिहेवियर थेरेपी करा सकें, जो आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकें. और सेकेंडली जब ऐसे स्कूल्स, ऐसे सेंटर्स बनना शुरू हो गए हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर वी शुड स्टार्ट सेंडिंग एंड नरिशिंग दोज एरियाज जो इस वक्त बड़ा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं. तो मेरे अगर उसमें हो
अगर मेरी कोई उसमें सुनी जाए, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल हु आर इनटू दीज फील्ड्स, जो स्पेशल चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ काम करें, दे शुड बी कलेक्टिवली वर्किंग ऑन वन एजेंडा कि जी हम इन एरियाज को कवर करें। बिकॉज एक चीज जो मैं देखती हूँ कि एक जगह बहुत डेडिकेशन है, दूसरी जगह से खबर मिलती है नहीं जी वहां तो सिर्फ इट्स मनी मेकिंग प्रोसीजर। तो वो Yeah. पेरेंट्स आर लाइक रोलिंग स्टोन, फुटबॉल बने हुए होते हैं कि whom to select। तो जब मेरे से एक बात जाती है, ये मुझे अपना, मैं जरूर कह दूंगी कि जब मैं किसी को रेकमेंड करूंगी तो मैं उसी जगह को रेकमेंड करूंगी जिसको मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं किसी के कहने पे, बिकॉज मेरी अप्रोच शायद फर्क हो, मेरी थिंकिंग फर्क हो, मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल फर्क हो, तो मैं किसी के कहने पे किसी को रेकमेंड नहीं कर सकती। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं उसी जगह रेकमेंड करूंगी जिसका मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, where mother and child or the family or the child is being catered as a regular पार्ट। जब आप उसको पूरी तरह ओन कर लेते हैं, हम बच्चे को तो नहीं ओन कर रहे होते ना, हम तो पूरी उसके साथ जितनी भी पूरी यूनिट को आप ओन करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा टाइम आ जाता है व्हेन आई फील हार्ड एंड डिफिकल्ट, बिकॉज मीन्स भी तो नहीं है ना इतने अभी कि हम उस जगह, तो मेरा स्ट्रेट एक रिकमेंडेशन होती है कि जी टेक देम टू दैट प्लेस। तो अब इसी में मैं सजेशन दे दूं कि मस्ट गेट अ ट्रांसपोर्ट अरेंज बिफोर वी ओपन इट ऑफिशियली, ताकि वो जो हमारे गैप एक आया हुआ है मदर्स के लिए स्पेशली, कि हम किस तरह इधर से उधर भेजें। तो मेरे ख्याल में माय सजेशन इज कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म में आ जाएं एंड वी हैव अ ट्रांसपोर्ट अरेंज्ड, तो वो बच्चे के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज क्वालिफाइड टीचर्स का एक प्रोफेशन में होने का रिजल्ट ही फर्क होता है ना। देखो मैं खुद बहुत सारी उम्र टीचिंग करती रही हूँ, बट मैंने प्रेफर किया अपने बच्चे को कि वो उसी जगह जाए जो उसके लिए सूटेबल है। teachers का impact it's different. If you find a good teacher, it's going to be a lifelong impact, definitely. बिल्कुल, ये एक एस्पेक्ट जरूर है कि जी उसको रेगुलर बच्चों के साथ भेजें, उसको रेगुलर उस पे जाएं, वो भी होना चाहिए। लेकिन आप उसका मैक्सिमम टाइम जो है, जो क्वालिटी टाइम है, वो उसको वही मिलना चाहिए जो उसको प्रोफेशनली लोग हैंडल कर रहे हैं इस वक्त। वो हम उसको रेगुलर बच्चों में डाल के ऑड वन आउट ही कर रहे होते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, हम उसको उसकी जगह पे, राइट प्लेस पे जाना चाहिए उसको, और once or twice a week और half an hour in social sector उसको हमारे पास आ जाना चाहिए। This is what I personally feel कि जब इतने अच्छे सेंटर्स बने हुए हैं, इतने क्वालिफाइड लोग उसमें हैं, तो बेनिफिट उधर ही जाना चाहिए। और ये चीजें नहीं चल सकती जब तक कि हम खुद एक पेज पे सब लोग ना आ जाएं। Okay, so thank you so much, ma'am, for joining us today. This has been an amazing and a very informative session. And honestly, your journey, your son's journey, listening to it, I've said this before, but again, I'll say it again, listening to it has given me, it has given me a lot of hope. There should be hope. One should never ever lose the hope, because अगर आप hopes छोड़ देते हैं तो फिर you can't achieve anything. बच्चे, give your best and leave rest to Allah. Definitely. Give your best. Thank you. And decision आपका strong होना चाहिए. You should be a strong decision maker. Yeah. Okay, so I'd like to thank all the viewers also for joining us. We received a lot of love in the comments. Like seriously, I don't think I can read all the comments, but it's been like so much love for you, and you have inspired a lot of people today. Thank you so much, everyone who is sending love. My prayers all for you, and may Allah bless you with all the happiness, with all the wishes, your wills come true,
and you Amazing. see yourself as a successful person in times to come. And all my best wishes to Creative Kids and to you, Bache. You doing a wonderful job. You're bringing सबको इकट्ठा करना on one page, getting best out of this जो टेक्नोलॉजी है उसको This यूटिलाइज platform, करना yeah. कोविड के दिनों में, it's amazing. Thank you so much, ma'am. And it's honestly, it's all thanks to Ma'am Sabine, because she is the one. उनके vision को लेके हम चल रहे हैं, बिल्कुल. and yeah, it's all because of her. So thank you so much, Thank and you so much. Thank you. Allah Thank you. Hafiz. Allah Hafiz.